آج واضح عنوان محبت خدا کی طرف سے آتی ہے کے ساتھ آئیں ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے ہم بعض اوقات خدا کی گہری محبت کی گہرائی، چوڑائی اور کامت کو مکمل طور پر نہ سمجھتے ہوئے صرف اپنے منہ سے خدا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں نے اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو زیادہ سمجھا ہوگا، لیکن چونکہ وہ خدا کی محبت کا مکمل ادراک نہیں رکھتے تو بعض اوقات ان کا ایمان مدد نہیں کر سکتا، بلکہ کسی نہ کسی وقت بڑھنا رک جاتا ہے اور ویسا ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے آج آئیں ہم خدا کی محبت کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کے بارے میں ایک مختصر کہانی ہے جسے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ دنیا میں چرچ جانے والے مسیحیوں میں سے بعض کہتے ہیں میں امیر بننے کے لیے چرچ جاتا ہوں، یا میں چرچ اس لیے جاتا ہوں کہ اگر میں خدا سے بہت زیادہ دعا کروں تو وہ میری دنیاوی مشکلات حل کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی وجوہات کی بنا پر چرچ جاتے ہیں، تاہم اکثر اوقات خدا ہماری دعاؤں کا جواب ہماری توقعات سے قدرے مختلف سمت میں دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ مختصر کہانی ایسا ہی سبق بانٹتی ہے۔ میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ عنوان ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کامیاب طرز زندگی کے لیے قوت چاہتا تھا، لیکن خدا نے مجھے فروتنی بخشی تاکہ میں فرما برداری سیکھ سکوں۔ میں نے دنیا میں عظیم کام کرنے کے لیے اچھی صحت کی دعا کی تھی، لیکن خدا نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا تاکہ میں عظیم کام کر سکوں۔ میں نے پرمسرت زندگی گزارنے کے لیے دولت مانگی، مگر خدا نے مجھے غربت دی تاکہ میں عقل مند بن سکوں۔ میں نے عزت کے لیے دعا کی تھی تاکہ ایک ایسا شخص بنوں جس کی ہر کوئی عزت کرے، لیکن خدا نے مجھے مشکل حالات میں ڈالا تاکہ میں ایسا شخص بن سکوں جسے خدا کی ضرورت ہو۔ میں تنہا تھا، تنہائی محسوس کرتا تھا، اس لیے میں نے دنیاوی دوستی مانگی، مگر خدا نے مجھے کشادہ دل بخشا کہ دنیا کے سب لوگوں سے محبت رکھوں۔ میں نے دنیا کی لذتیں مانگی تھیں تاکہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکوں، مگر خدا نے مجھے ایسی زندگی گزارنا بخشا جس سے دوسروں کو خوشی ملے۔ اگرچہ مجھے وہ دنیاوی چیزیں نہیں ملی جن کے لیے میں نے دعا کی تھی، پر خدا نے ہمیشہ مجھے اپنی زندگی کے دوران آسمان میں برکات جمع کرنے کا طریقہ بخشا ہے۔ مجھے ہمیشہ فراخ دلی سے برکت دینے کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں کامیابی کے لیے بڑی قوت کی خواہش کی، لیکن خدا نے مجھے پست مقام پر رکھا تاکہ میں فرما برداری سیکھ سکوں۔ میں دنیا میں عظیم کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خدا سے جسمانی صحت کے لیے دعا کی، لیکن خدا نے مجھے ایک بیماری میں مبتلا رہنے دیا تاکہ مجھے زندگی کے ایک بڑے معنی کو سمجھنے میں مدد ملے۔ ہمارے اراکین میں سے کچھ شاید پوچھیں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میں کیوں اتنی تکلیف میں ہوں؟ یا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں مگر میں غریب کیوں ہوں؟ بعض اوقات میں نے ایسے الفاظ سنے، تاہم ہمیں پیدا کرنے میں خدا کی گہری مرضی ہے۔ پیدائش میں درج کلمات کے مطابق کیا خدا نے بنے نوع انسان کو اپنی صورت پر پیدا نہیں کیا تھا؟ یوحنا باب 5 آیت 17 میں یسوع نے کہا میرا باپ اپنے تخلیقی کام کو مکمل کرنے کے لیے اب تک کام کرتا ہے۔ چونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کون سی راہ پر چلنا ہے، تو ہم اکثر بلا واسطہ حقیقت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ براہ کرم مجھے دولت مند بنائیں، یا اے خدا براہ کرم مجھے بڑا اختیار بخشیں۔ کتاب مقدس ہمیں بیدار کرتی ہے کہ جب ہم خدا سے ایسی دنیاوی چیزیں مانگیں تو وہ بعض اوقات ہمیں عاجز کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں دنیا میں پست ترین اور انتہائی نچلے مقام پر رکھتے ہیں۔ شاید بعض کہیں میں نے بہت دعا کی لیکن خدا نے میری دعا کا جواب نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دیتے،
وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ جوابات کس کے فائدے کے لیے دیے جاتے ہیں؟ ہماری اپنی روحوں کے فائدے کے لیے خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا جو چاہتے ہیں وہ ہماری روح کا فائدہ ہے۔ جتنا ہم خود سے محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ خدا ہم سے محبت رکھتے اور ہمیں عزیز رکھتے ہیں۔ مزید برآں خدا ہمیں سب کچھ گردانتے ہیں۔ آپ میری زندگی میں میرا سب کچھ ہیں، آپ میری واحد فکر ہیں۔ جب بھی آسمانی ماں ہم سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں تو ہمیں واقعی ان کی محبت اور قربانی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آسمانی چیزیں زمینی چیزوں سے زیادہ شاندار ہیں اور آسمانی تک زیادہ جلالی ہے، اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی خدا اس زمین پر مجسم ہو کر آئے اور گناہ گاروں کی طرف سے ہر قسم کے تمسخر، بہتان اور طرح طرح کے دکھ سہے۔ آسمانی باپ اور آسمانی ماں جب بھی اپنے فرزندوں کو گمراہ ہوتے اور اس دنیا کی جانب چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ ان کے فرزند خدا کی محبت کو مکمل طور پر نہیں سمجھے، اپنی دنیاوی فطرت سے پاک نہیں ہوئے اور خدا کے کلام کے ذریعے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا ہے، تو وہ صبر سے ان کے لوٹنے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے فرزندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے باپ اور ماں کو شکر اور جلال دینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ جن کے والدین ایسے ہیں اور انہیں اپنے والدین سے ایسی محبت ملی تو وہ واقعی مبارک ہیں۔ میں آپ کے لیے اسے مختصراً پڑھتا ہوں۔ امریکہ میں ایک کوریائی بچہ تھا جسے ایک ریٹائرڈ صحافی نے گود لے لیا تھا۔ اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی جو امریکی تھے۔ وہ پڑھے لکھے تھے اور باوقار زندگی گزارتے تھے۔ تاہم یہ بچہ مختلف تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا جو اپنے والدین کی بات سنتا اور محنت سے پڑھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے خاندان میں واحد شخص ہے جس کی جلد اور بالوں کا رنگ مختلف ہے۔ پھر وہ بھٹکنے لگا۔ وہ رات گئے تک گھر نہیں آتا تھا، شراب پیتا تھا، گنڈوں کے ساتھ گھومتا تھا اور اکثر لڑائی کرتا تھا۔ تاہم اس کو گود لینے والے باپ نے اسے بالکل نہیں ڈانٹا بلکہ محبت سے اس کا انتظار کیا اور ہمیشہ اس کے لوٹنے کی دعا کرتا رہا۔ ایک دن بچہ اپنے گود لینے والے باپ کے پاس روتا ہوا آیا اور کہا، صرف میں ہی کیوں جس کی جلد اور بالوں کا رنگ مختلف ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں غیر ذمہ دار والدین کے ہاں ایک ناپسندیدہ بچے کے طور پر کیوں پیدا ہوا۔ اب میں امریکہ میں ہوں، میرے دوستوں کی طرف سے صرف تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے واقعی اپنے والدین سے نفرت ہے۔ میں حتیٰ کہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سن کر گود لینے والے باپ نے آہستگی سے کہا، میرے پیارے بیٹے، تم لاوارث بچے نہیں ہو، تم واقعی ایک شاندار ماں کے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہاری حفاظت کے لیے حتیٰ کہ اپنی جان دے کر تمہیں بچایا۔ پھر گود لینے والے باپ نے درج ذیل کہانی بیان کی۔ کوریا کی جنگ کے دوران میں نے امریکی فوجی کے لیے صحافی کے طور پر خدمات انجام دی۔ جنوری سے چوتھی اعتکاف کے دوران ہماری فوج سیول سے نکل کر واپس دیجن چلی گئی۔ جب ہم برفیلی ہوا سے گزر رہے تھے تو ڈرائیور اچانک چلایا، او وہ کیا ہے، اور گاڑی روک دی۔ ہمیں سڑک کے کنارے ایک تقریباً برہنہ عورت کی لاش پڑی ملی۔ وہ عورت مضبوطی سے جھکی ہوئی تھی اور اس نے کچھ ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے اس نے قیمتی خزانہ تھام رکھا ہو۔ اس نے اپنے بچے کو گرم اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر اسے لپیٹا۔ اس کی آغوش میں ایک نومولود بچہ تھا جو بمشکل سانس لے رہا تھا۔ چونکہ میں عورت کے زچگی کی محبت سے بہت متاثر ہوا تھا تو میں نے اس کے لیے ایک قبر بنوائی اور اس بچے کو اپنے لے پالک بیٹے کے طور پر امریکہ لے آیا۔ جب بچے نے یہ کہانی سنی تو وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ گیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
उस दिन से बच्चा बदल गया। उसने जांफशानी से मुताला किया, मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन की और आखिरकार छाती का जराह बन गया। उसने रजा कराना तौर पर बतौर मिलिट्री डॉक्टर खिदमत की और उसे कोरिया भेज दिया गया। शदीद सर्दी के दिनों में वो कोरिया में अपनी माँ की कब्र तलाश करने गया, जिसके बारे में उसके गोद लेने वाले बाप ने उसे बताया था। अपनी माँ की कब्र के सामने उसने अपने कपड़े उतारे और घुटने टेक कर सारी रात रोता और सरगोशी करता रहा कि माँ, उस दिन बहुत ज्यादा सर्दी रही होगी, क्या ऐसा नहीं था? माँ, ये सारी कहानी है। जब हम कहानी पर गौर करें, बच्चे को एहसास हुआ कि उसे महज गोद नहीं लिया गया, बल्कि उसकी माँ ने उसे बचाने की बेहद कोशिश की और बिल आखिर उसकी जान बचाने के बाद उसकी मौत हो गई। अपनी माँ के बारे में ऐसी दिल शिकन सच्चाई जानने के बाद वो एक बड़ा जरा बन गया। यूं कहानी खत्म होती है। पहले पहल बच्चे ने अपने वालिदैन से नाराजगी जाहिर की, मगर जब उसे हकीकत समझ आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके वालिदैन कसूरवार नहीं हैं। चूंकि कोरिया की जंग चल रही थी, इसलिए माँ ने सोचा होगा कि अपने बच्चे को बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने पहने हुए कपड़े उतारकर उसके गिर्द लपेटे, ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहे। क्या जनवरी में इत्तेकाफ नहीं हुई थी? वो महीना कोरिया में शदीद सर्दी का होता है। इस मायूस कुन सूरत हाल में माँ ने खुद को कुर्बान करके अपने बच्चे को बचाया। अगरचे यसु मसीह की मोहब्बत की गहराई का मुआसना नहीं किया जा सकता, पर यह कहानी उनकी याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने सलीब पर मसलूब होकर हमें बचाया था। उस शख्स ने बाद में अपनी माँ की याद के साथ, जो उसके लिए मरी थी, कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी। हत्ता कि अगर हम गहराई से इसके बारे में ना भी सोचें तो उसने यकीनन रास जिंदगी गुजारी होगी और एक अजीम डॉक्टर के तौर पर मुआशरे में नुमाया खिदमत अंजाम दी होंगी। इसी तरह अगर हम उस कुर्बानी को ना समझें जो हमारे रूहानी बाप और हमारी रूहानी माँ ने हमारे लिए दी, यानी अगर हम इसे महज 2000 साल पहले के वाकया के तौर पर समझें और इसे अपने दिलों पर कंधा ना कर पाएं, तो हम खुदा की अजीम कुर्बानी को महज एक कहानी या लोक कहानी के तौर पर समझेंगे। ताहम दरअसल हमारे बाप और हमारी माँ इस जमीन पर जिस समय हमें बचाने के लिए आए, वो सिर्फ अपने फर्जंदों को बचाने के लिए इतनी बुरी तरह सलीब पर मोए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खुदा ने एक वजह यानी हमारी निजात के लिए इस किस्म की जिंदगी गुजारी थी। इसलिए मैं सयून के तमाम भाइयों और बहनों से कहता हूं कि अपने पड़ोसियों से वो मोहब्बत बांटें जो आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें दी है। इस वजह से पौलुस रसूल ने आसमानी खानदानी अराकीन को सच्चाई से रोशनास किया कि हमेशा ईमान और उम्मीद रखें, बल्कि सबसे पहले और सबसे अहम ये कि मोहब्बत रखें। क्या पहले कुरिन्थियों बाब 13 में ऐसा नहीं लिखा है? पौलुस रसूल ने इब्तिदाई कलीसिया के मुकद्दसीन और खुदा पर ईमान रखने वाले इस जमाने के तमाम मुकद्दसीन को ताकीद की थी कि हमारे ईमान का सबसे अहम अंसर मोहब्बत है। आए पहले कुरिन्थियों की किताब बाब 13 की तरफ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 13 आयत 1। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबुवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। किताब मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर हमें सिखाती है कि जब हम अपने ईमान की जिंदगी से मोहब्बत को खारिज कर दें
तो हमारा ईमान और उम्मीद बेमानी है। आयत 4 से जारी रखते हैं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबुव्वतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। तमाम नबुव्वतें, जुबानें और इल्म वक्त के साथ साथ गायब हो सकते हैं। ताहम एक चीज है जिसे हम आखिर तक हता के आसमान की बादशाही में अपने साथ ले जा सकते हैं, वो मोहब्बत है। क्या खुदा की बादशाही मोहब्बत की बादशाही नहीं है? किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मोहब्बत का वजूद अब तक है। ये लिखा है कि वो वक्त आएगा जब हमारे पास मौजूद सब कुछ गायब हो जाएगा, ताहम मोहब्बत खत्म नहीं होगी, ये अब तक मौजूद रहेगी। आयत 12 की तरफ जाते हैं। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। ये तीनों हमारे ईमान के अहम हिस्से हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर इनमें से अफजल, इनमें से क्या है? मोहब्बत है। इस मोहब्बत के बारे में लूका की इंजील बाब 10 आयत 25 से देखते हैं। लूका बाब 10 आयत 25 में यह लिखा है कि और देखो एक आलिम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारे जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उसे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तय रासबाज ठहराने की गर्ज से यसु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यसु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तर्स खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यसु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इस तमसील में एक गहरा रूहानी मफहूम है। अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए क्या हमें दुनिया के सब लोगों के साथ खुदा की मोहब्बत नहीं बांटनी चाहिए? तो फिर रूहानी मोहब्बत क्या है? ये वो मोहब्बत है जो तमाम बनेनो इंसान को जिनका मुकद्दर मौत है जिंदगी की सच्चाई की तरफ ले जाती है, चाहे ये रूहानी मोहब्बत हो या जिस्मानी मोहब्बत। यसु ने मसीहियों को सिखाया कि दूसरों के साथ उस मोहब्बत से पेश आएं जो उन्होंने खुदा से सीखी है। क्या ये उनकी तमसील की तालीम नहीं है? काहिन वो होते हैं जो खुदा के आईनो अहकाम से बखूबी वाकिफ होते हैं। जैसा कि सब काहिन लावियों के कबीले से आते हैं, इसलिए लावी भी काहिनों के बराबर हैं।
अगरचे वो शरीयत से बाखबर थे, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। मरती रूह को बचाने की कोशिश करने की बजाय वो ये सोचकर अपनी साख की ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि अगर मैं इस किस्म के लोगों में शामिल हो जाऊं तो क्या मेरी रोजमर्रा जिंदगी तकलीफदेह नहीं हो जाएगी। नतीजतन उन्होंने उस शख्स की मौत पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ताहम सामरी ने उस शख्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हालांकि वह सफर पर था। यसु ने पूछा, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था कौन पड़ोसी ठहरा? यसु ने हम पर उजागर किया कि जिसने उस पर रहम किया, यानी मोहब्बत पर अमल करने वाला हकीकी पड़ोसी है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल वजूहात में से एक ये है कि क्यों हमें मुस्तदी से मुनादी करनी चाहिए। मजीद बरा, हत्ता कि अगर हमें ऐसी हकीकी सूरत हाल का सामना हो तो उधर से गुजरने की बजाय क्या हमें खुदा के फर्जंदों के तौर पर एक शख्स की जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे नेक सामरी ने की थी? क्या ये वो नहीं जो यसु मसीह हमें सिखाना चाहते थे? खुदा की शरीयत और फरमानो कवानीन सब बेशकीमत हैं, हमें इन सब पर अमल करना चाहिए। ताहम मोहब्बत के बगैर हर चीज बेमानी हो जाती है। किताब मुक़द्दस मुसलसल इस बात पर जोर देती है। हमें अपने बाप और माँ से मिलने वाली मोहब्बत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो मोहब्बत जो खुदा ने हमें सलीब पर दिखाई थी। आसमानी फर्जंदों ने आसमान में गुनाह किया था और इस ज़मीन पर मरने के लिए फेंक दिए गए थे। अगरचे हम कभी ऐसी मायूसकुन सूरत हाल से दुचार थे, तो क्या अब हम उस जलाली मकाम पर नहीं हैं जहां हम मुखलिसी की बेशकीमत खून के वसीला आसमान की उम्मीद रख सकते हैं? हमें किताब मुक़द्दस के बारे में अपने फहम और नए अहद की सच्चाई में आने को हमारी अपनी अकल और किताब मुक़द्दस की गिरफ्त से मंसूब नहीं करना चाहिए। क्या हमें मोहब्बत और रहम की ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया जिसे खुदा ने पुरफजल तौर पर हमें बख्शा है? लिहाजा हम उनके फजल को हरगिज ना भूलें। कहानी में जो मैंने पहले आपको सुनाई, जब कोरिया की जंग में बच जाने वाले बच्चे ने कहानी सुनी थी कि उसे कैसे गोद लिया गया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अपने आप को कितना कुर्बान किया। वो उसकी कब्र पर गया और चिल्लाया, जिस रात आपने मुझे बचाने की जद्दोजहद की थी, क्या आज रात की निस्बत उस वक्त ज्यादा सर्दी नहीं थी? वहीं खड़े हुए अपनी माँ की तरह उसने कपड़े उतारे। उसने यकबस्ता सर्दी के उस बेइंतहा दर्द को महसूस किया जो एक लम्हे के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे बचाने के लिए उसकी माँ की कुर्बानी की हद को समझने पर वो अपनी माँ पर इससे ज्यादा फख्र नहीं कर सकता था। जब हम 2000 साल पहले खुदा के सलीब पर दी गई कुर्बानी और किताब मुक़द्दस के उन तमाम इंदराजात को देखें जो हमें 6000 साल के लंबे अरसे में खुदा की कुर्बानी के बारे में सिखाते हैं, तो हमें हरगिज खुदा की मोहब्बत को हल्का नहीं लेना चाहिए। हम पहले यूहन्ना बाब 4 आयत 7 से देखते हैं। बाब 4 आयत 7 देखते हैं। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। अंग्रेजी किताब मुक़द्दस इस फिक्रे की वजाहत यूं करती है कि मोहब्बत खुदा की तरफ से आती है। एक और वर्जन में इसका इजहार बयान यूं है कि मोहब्बत खुदा से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। आयत 8, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। आप सब आइए हम हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि खुदा हमसे कैसी मोहब्बत रखते हैं। हमें नेक सामरी की तरह अपने भाइयों और बहनों को बचाना चाहिए।
हमें कभी भी तमसील में लावी या काहिन की तरह काम नहीं करना चाहिए। खुदा की कलीसिया के तमाम अराकीन को दुनिया के तमाम लोगों से खुदा की मोहब्बत बांटने के काबिल होना चाहिए। हमें हमेशा हर उस शख्स के साथ खुदा की मोहब्बत बांटनी चाहिए जिससे हम मिलते हैं, चाहे घर में, मुआशरे में या चर्च में। हम खुदा के बारे में सोचें। हम सोचें कि बाप और माँ ने हमें बचाने के लिए किस किस्म की कुर्बानी दी है। अगर हम अकेले रह जाते तो किसे मरना था? मेहरबानी से एहतियात से सलीब की तकलीफदेह राह के बारे में सोचें जिस पर खुदा को चलना था, क्योंकि हमें बचाने का और कोई तरीका नहीं था। ऐसा करते हुए हम हरगिज बेवकूफ लोग ना बने जो अपने बाप और माँ की मोहब्बत से मुंह मोड़ लें, भूल जाएं या धोखा दे दें। मैं सयून के तमाम फर्जंदों से कहता हूं कि उनकी राह की पैरवी करें और उनके साथ मोहब्बत की अजीम राह पर चलें। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था कि जब आप खुदा से दुआ करें तो ये ना सोचें कि खुदा मेरी दुआओं का फौरी जवाब क्यों नहीं देते। बेशक खुदा हर दुआ का जवाब देते हैं। क्योंकि खुदा को हमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए वो हमेशा हमारी दुआओं का जवाब उस हिम्मत में देते हैं जहां हम आखिर में आसमान की बादशाही की बरकत पा सकते हैं। हम शायद खुदा से दुनियावी कुव्वत और दौलत मांगे, लेकिन खुदा हमारी दुआ का जवाब मुख्तलिफ सिमत में देंगे, यानी आजिज़ी नाम के तोहफे से। इसकी वजह यह है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। पहले यूहन्ना की किताब हमारे लिए खुदा की ऐसी गहरी मोहब्बत को बयान करती है। आयत 16 देखते हैं। बाब 4 आयत 16। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। जैसे जैसे हमारे प्यारे सियोन के खानदानी अरकान की तादाद बढ़ रही है और कलीसिया बढ़ रही है, तो मैं बाज़-औक़ात ये सोचकर फिक्रमंद हो जाता हूँ कि क्या होगा अगर ये अरकान मुस्तदी से दूसरों को खुदा की मोहब्बत में शरीक ना करें। चाहे हमारे पास बहुत से अरकान हों या ना हों, आसमानी फर्जंदों को मोहब्बत के इस हुक्म की तामील मुकम्मल तौर पर करनी चाहिए जो खुदा ने हमें दिया है, और इसे अमली जामा पहनाना चाहिए। हमें भी दुनिया के सब लोगों को बाप और माँ की मोहब्बत पहुंचानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हों, खा घर पर खानदानी रुकन के तौर पर, चर्च के एक रुकन के तौर पर या मुआशरे के एक रुकन के तौर पर, आप बतौर मोहब्बत नुमाया नजर आएंगे, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद हैं। मोहब्बत किसकी तरफ से आती है? ये लिखा है कि मोहब्बत खुदा की तरफ से आती है। अगर हमारे दिल हमेशा मोहब्बत से पूर्ण हो तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जिंदा सबूत है कि खुदा हमेशा हमारे साथ हैं? हम अपने आसपास हर एक, यानी सयून में हमारे भाइयों और बहनों, अपने खानदानी अरकान, साथी कारकुनान, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ मोहब्बत से पेश आएं। मुझे दिली उम्मीद है कि ये पैगाम जमीन के हर कोने में सुना जाएगा कि वाकई आसमानी फर्जंद मोहब्बत से मामूर हैं, जिन्हें खुदा आंसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ ने तालीम दी है। वो सारी दुनिया में जहां कहीं जाएं मोहब्बत से चमकते हैं। इस वजह से मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि सबके साथ मोहब्बत बांटें। शरीयत अहम है, नया अहद भी अहम है, हर चीज अहम है, लेकिन जो सबसे अहम है वो खुदा की तरफ से मोहब्बत है। क्या ये किताब मुक़द्दस में नहीं लिखा है
کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آس پاس شاید کچھ ایسے اراکین ہوں جن کا قول و فعل ہمیں بے چین کرتا ہے، تاہم ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے پس منظر مختلف ہیں۔ ہم سب صیون میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے فرزند ہیں، اور اراکین ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جنہیں بچانے کے لیے انہوں نے خود کو قربان کیا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے صیون کے تمام خاندانی اراکین کو ایک ذہن کے ساتھ متحد ہونا چاہیے اور خوشخبری کو مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے پرفضل آسمانی فرزند بن جائیں، اس امید سے کہ آسمان کی بادشاہی کے تمام فرزند گھر میں، کلیسیا میں اور معاشرے میں محبت سے چمکیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔